میرے ساتھ موجود ہیں زلزلہ افیکٹیز، لیکن آج وہ جس سچویشن میں ہے مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے، اور میری آف دا ریکارڈ ان نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی تو مجھے خود فخر محسوس ہو رہا تھا. کھیل کا میدان ہو، تعلیم ہو، یا پھر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں یہ پیش ہے اور آگے آگے. اورنگزیب اسری ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ اورنگزیب. آزاد کشمیر سے تعلق ہے، ذرا جانتا ہوں کہ اس اسپیسیفک علاقے سے. ان کے ساتھ آسیہ حبیب نے ہمیں جوائن کیا. آسیہ حبیب ٹیک وانڈو چیمپئن ہے، نیشنل چیمپئن ہے ٹیک وانڈو کی، زلزلہ متاثرین میں سے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیک وانڈو چیمپئن ہے اور باہر کے بھی وزٹ کر چکی ہیں. آسیہ حبیب آئی تھنک آپ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. چلیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. شاکر حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. شاکر آپ کا بھی بہت شکریہ. شاکر بی فارم پڑھ رہے ہیں اور شاکر کا تعلق کاغان سے ہے. شاکر بھی ٹیک وانڈو پلیئر ہے. ان تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں وقت دیا، اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں اورنگزیب، کیا حالات تھے، کیسی سچویشن تھی، کیا دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ سر یہ 8 اکتوبر 2005 کا واقعہ تھا. میں اس وقت 7 سال کا تھا. ہم اسکول میں تھے اور اچانک زلزلہ ہوا. اب ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، پہلے زلزلہ دیکھا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر طرف آہو پکار تھی، بلڈنگیں گر رہی تھیں، اور ہم بائی گراؤنڈ میں آ گئے، اور پھر تباہی مچی ہوئی تھی. ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا. پھر اس کے بعد شام کو بارش ہو گئی. اب جن لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں وہ باہر کھلے آسمان تلے ہیں اور بارش ہو رہی ہے. ویسے تو یہ اپنے پیاروں کی لاشوں کا تذکرہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم اپنی قوم کو بتائیں، بلکہ ساری امت کو بتائیں کہ قدرتی آفات اگر آئیں اور جو ان سے متاثر لوگ ہوں، ان کے جذبات، ان کے احساسات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے. اور یہ پاکستان کی عوام نے ثبوت دیا ہے. ارجنٹ لوگ وہاں پہنچے ہیں، آرمی پہنچی ہے اور ان کو ریسکیو کیا ہے. تو پھر ہمارے بھی کچھ ایسے حالات تھے، مکان گر گیا تھا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کو جو گھر میں جو کمبل تھے وہ اوپر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بارش بھی ہو رہی تھی. تو عجیب سا سامان تھا سر. آسیہ، کچھ تھوڑی شیئرنگ میں چاہوں گا کہ اس حالات کی بھی کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اور اب آپ کی زندگی پر بھی بات ہوگی. ماشاءاللہ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پاؤں پر کھڑا کیا ہے. تو آسیہ تھوڑا سا اپنی یادیں بتائیں، آپ کتنے سال کی تھیں اس وقت؟ جب زلزلہ ہوا میری عمر 1 سال کی تھی. بہت چھوٹی تھیں آپ. جی میں 1 سال کی تھی. تو آسیہ کچھ یاد ہے کوئی ایسی بات جو سنی ہو کسی سے کہ کیا صورتحال تھی؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ماما بتاتی ہیں اکثر کہ ہمارا گھر گر گیا تھا کشمیر میں، تو ہم لوگ بالکل بیگار ہو گئے تھے، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی نہ کچھ اور تھا. رہتے بھی ہم جموں کشمیر میں تھے، وہاں پہ تو حالات بھی اب بہت برے ہیں. آپ کون سے علاقے سے آسیہ؟ میں اب مظفر آباد میں رہتی ہوں، لیکن پہلے جموں کشمیر میں رہتی تھی. جموں کشمیر میں رہتی تھی. اچھا اورنگزیب، آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ میں بیسیکلی مظفر آباد سے. ٹھیک، مظفر آباد سے. شاکر، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں ان حالات کو. سر وہ جو ٹائم تھا 2005 کا بڑا مشکل تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ تقریباً میں 7 سال کے لگ بھگ تھا، اور اس وقت بچہ تھا، لیکن اتنے اس چیز کو مطلب جو منظر ہم نے دیکھا ہولناک قیامت کی سماعت تھا بالکل. جب بالاکوٹ تباہ ہوا، اس کا جتنا گرد و غبار تھا ہمارے علاقے کی طرف موو ہوا، تو بالکل اندھیرا تھا اس وقت. ایون ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت اندھیرا ہو گیا تھا. کاغان میں بالکل یہی صورتحال تھی، کیونکہ وہاں بھی پہاڑ گر رہے تھے اور ان سے جو دھول پیدا ہو رہی تھی غبار بنا رہی تھی، تو مطلب بہت ہولناک منظر اس ٹائم نظر آ رہا تھا. تو اس وقت پھر یہی اثر کے بعد بارش ہوئی، جو دھول وغیرہ بیٹھی، وہ بحثر عثمان تھے، سارے لوگ ہم سب بحثر عثمان تھے. اور اس وقت پھر کچھ اوڑھنے کے لیے نہیں تھا، ہم لوگ باہر تھے، بارش ہو رہی تھی. لیکن اس وقت پھر ہم ارجنٹلی کچھ لوگ گئے وہاں پہ جنہوں نے سیکیور کیا ہمیں. تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ سب ہم لوگوں کے لیے کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان، اور آج ہم اس مقام پر بھی ہیں. خطرناک باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر کرتے میری اپنی بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ منظر آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو یاد ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ بتائیں کہ اورنگزیب آپ کیسے پہنچے، آرفنیج ہاؤس کیسے پہنچے، پھر یہاں پر زندگی کیسے زیرو سے شروع کی؟ اس کے بعد یہ ایک بات ہے کہ اللہ ایک در کھولتا ہے 100 در، اللہ ایک در بند کرتا ہے 100 در کھولتا ہے. اس کے بعد خبیب فاؤنڈیشن نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کیا، اور ان کا ایک ادارہ تھا آشیانہ میں ہمیں لے. بہت محنت کی، شفقت کی محنت کی کہ ہمیں وہ ہمارے سے وہ یادیں بھلا دے.
جو ہم نے اپنے عزیزوں کو کھویا تھا اور جو ہم نے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھے تھے وہ یادیں بلا دیں. اور الحمدللہ ہمارے اگر اللہ نے والدین ہم سے چھین لیے تھے تو اللہ نے ہمیں ان کے بنسبت اچھے والدین فراہم کیے جنہوں نے ہمیں ہماری ایسی تربیت کی کہ آج ہم اس مقام پر ہیں. اشانہ میں ہم آئے, اشانہ میں رہے اور وہاں سے الحمدللہ میرے جیسا بچہ جس کو 8 اکتوبر کے بعد اپنا مستقبل بالکل گھٹاٹوپ اندھیروں میں نظر آ رہا تھا, میں نے پھر دو دفعہ خبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ٹرکی میں انٹرنیشنل کانفرنس میں. اور آج میں الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن کی بدولت آج میں ماسٹر کر رہا ہوں میڈیا پروڈکشن میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک ایسے بچے کو, اور یہ اس کا کریڈٹ پوری پاکستان عوام کو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے بچے کو جس کو اپنا مستقبل بالکل پتہ بھی نہ ہو اور آپ اس کو اس مقام تک پہنچائیں کہ وہ سوسائٹی کا ایک اہم ممبر بن جائے. زبردست. آسیہ کیسے پہنچی؟ کیا آپ تو بہت چھوٹی تھی لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ کی پرورش ہو رہی ہے, اب آپ خود ٹیکوانڈو چیمپئن ہیں. لائف کیسے سٹارٹ ہوئی, پڑھائی کا کیا سلسلہ چل نکلا؟ وہاں سے اس زلزلے کے بعد میری امی کا رابطہ ان سے ہوا خبیب والوں سے. اچانک سے وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ادارہ ہے ان کا راڑا میں, وہاں پہ بھی خبیب کا ان کا ایک پروجیکٹ ہے. تو وہاں پر یہ لوگ ہم لوگ کو وہاں پر لے آئے. ہم وہاں CMH میں تھے, اسپتال میں تھے, ایڈمٹ تھے. میرے ماموں کی ٹانگ کو بھی لگی تھی تو ہم وہاں ہاسپٹل میں تھے. تو وہاں بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو بے گھر تھے, کچھ بہت زیادہ ایسے تھے جو مطلب اس دنیا سے چلے گئے تھے, کچھ زخمی تھے, بہت زیادہ لوگ تھے. پھر وہاں پر یہ حبیب کی ایک ٹیم آئی اور میری امی کو سہارا دیا. میری امی کو رہنے کے لیے جگہ دی حبیب میں اور ہم لوگ کو وہاں سے حبیب میں لے آئے. تو پھر میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز حبیب سے کیا. یہاں سے آ کے میں نے پڑھنا شروع کیا اور ماشاءاللہ سے, اور اب میں میٹرک کر چکی ہوں. خبیب سے میں نے میٹرک کی سرگودا سے, وہاں پہ پہلے میں پڑھتی تھی, اور اب میں اسلام آباد میں پڑھتی ہوں. یہاں آ گئی ہوں فرسٹ ایئر. جی فرسٹ ایئر. یہاں پہ حبیب کے ایک ادارے, اب میں یہاں پہ آ گئی ہوں, اب یہاں پہ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, میٹرک کیسا رہا؟ میٹرک میں دوست آپ کے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ تھے, کیا یہاں پر بھی کچھ دوست ہیں وہ یا وہ بدل گئے؟ بہت زیادہ دوست ہیں. ایک تو یہ خبیب کے بچے, ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اور ویسے جب سے ہمیں چیئرمین صاحب کا سہارا ملے, ہمیں تو بالکل والدین کی کمی محسوس نہیں ہوتی. ایسا مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ کبھی یہ وقت آیا ہی نہیں تھا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. پہلے ہمیں بہت زیادہ مشکل سہی, بہت زیادہ مشکل ٹائم دیکھا. اب تو زندگی بہت بدل چکی ہے. اب تو الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. کوئی چیز ہمیں مشکل نہیں لگتی, کچھ ناممکن نہیں لگتا. اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. زبردست. میں آپ کی ہمت دیکھ کے بڑا متاثر ہو رہا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی ہمت خود بھی کی, آرگنائزیشن نے بھی آپ کی کی, اور پھر آرفنیج ہاؤس نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ورک آؤٹ کیا. اس کی جیتی جاگتی مثال آپ لوگ ہیں. شاکر, کیسے شروع کیا؟ پھر آپ 7 سال کے تھے, کیسے پہنچے؟ پھر اپنی لائف کا آغاز کیسے ہوا؟ تعلیم کا تھوڑا سا سلسلہ ہمیں بتائیں. ڈی فارم آپ نے چنا, ڈی فارمیسی میں کیسے جانا ہوا؟ سر بڑا مطلب میری جب اسٹوری ہے, میں جب تھا 7 سال کا تو میرا جو لوور پورشن تھا میری لیگ وہ ویک تھی بہت زیادہ. مطلب میں لائک اور تھائٹس تھا مجھے زیادہ, تو ان کو سر علاقے میں رہتا تھا, تو میرے لیے موو کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو پھر وہ خبیب فاؤنڈیشن کی گاڑیاں موو کرتی تھی, تو ان لوگوں نے مجھے ریسکیو کیا. مجھے لے اتشیشہ میں ان کا کیمپ ہوتا تھا, خبیب فاؤنڈیشن کا اتشیشہ میں. تو پھر مجھے وہاں لے, تو پھر میں نے وہاں سے اپنی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا, اور نرسری سے میں نے وہاں سے شروع کیا. میں جیسے اگر کوئی بچے اسمبلی کر کے جا رہے ہیں تو میں پہلی کلاس میں جاتا تھا, کیونکہ میں اسمبلی میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ میں ایک اب نارمل تھا اس وقت بول. تو پھر خبیب فاؤنڈیشن کے پرنسپل تھے, انہوں نے میرا علاج کرایا. تقریباً 2 ماہ میں ہاسپٹل میں رہا. تو اس کے بعد پھر میں نے گیمز بھی بہت سے حصہ لیا, ایون کرکٹ ڈسٹرکٹ لیول تک کھیلی میں نے پھر. تو اب بھی تھوڑا بہت ایشو ہے, لیکن وہ جو چیز تھی جو میں چل نہیں سکتا تھا وہ کور ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے, خود بھی ہمت کی شاکر. اس سارے بس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اس چیز کے لیے انکریج کیا اور موٹیویٹ کرتے رہے. اچھا, فیوچر کے لیے جیسے آپ لوگ خود اپنی اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں, میں آپ تینوں حضرات سے پہلے ذرا اورنگزیب میڈیا اسٹڈی کیوں چنا, کیسے چنا, اور پھر کیا آپ تمام لوگوں کی جو تربیت اور جس طرح سے آرفنیج ہاؤس آپ بتا رہے ہیں کہ کام کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, تو کیا آپ لوگوں کی جو فیوچر پلاننگ ہے اس پر برین اسٹارمنگ وغیرہ ہوتی ہے, سیشنز ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے کہ کیا کرنے کا شوق ہے, کدھر جانا چاہیے, کون سی فیلڈ کیسی ہے؟ سر ایسا ہے کہ تربیت اس طرح کی جاتی ہے, اور جو ٹاپ کی فیلڈ ہے ہمارا رجحان ہمیشہ اس طرف لے کے جایا جاتا ہے. جس طرح میڈیا ہوگی, LLB ہوگی, فارمیسی ہوگی, آرمی ہوگی, ٹاپ فیلڈ کی طرف یعنی کہ ہمارا رجحان بنایا جاتا ہے. میں نے میڈیا اس لیے چنا, ایک تو مجھے اینکرنگ کا بہت شوق تھا, اور
दूसरा मैं चाह रहा था कि मैं दुनिया के सामने कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आऊँ कि जो पहले हमारा मीडिया नहीं ला रहा, ठीक है। उसमें फिर जो हमारी तरह के बच्चे हैं जो नहीं पहुंच सकते किसी ऑर्फनेज तक, वहां तक जाएं, ठीक वहां है, पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात उन तक है रसाई करें। कि आप जरा लोगों को ये भी बताएं कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आगे लोगों के लिए क्या सोचा है, इस पे भी मैं कहता हूँ। तो ये वजह है मीडिया फील्ड चुनने जी की। बिल्कुल ये वजह है। तो आसिया, क्या करना है? अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स गर्ल भी हैं, आप टेक्वांडो की चैंपियन हैं, हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है। ये गेम कैसे शुरू कर दिया आपने खेलना? ये गेम जब मैं खुबैब में आई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे थे छोटे मुझसे जिनको ये गेम सिखाई जाती थी। मैं हमेशा जाती थी उन बच्चों को देखने के लिए, वो बच्चे गेम करती थी, उनको छुप के देखा करती थी। और फिर एक दिन हमारी टाइकोंडो टीचर थी, वो मुझे टाइकोंडो की क्लास में ले गई। फिर उन्होंने मुझे सिखाना जब शुरू की तो मुझे बहुत दिलचस्पी थी, जुनून था ये गेम करने का, क्योंकि इसमें ये था कि सेल्फ डिफेंस था और बंदा अपना बचाव कर सकता था सही तरीके से। तो मुझे बहुत पसंद थी ये गेम। फिर मैंने वहाँ से करनी शुरू की तो 2017 में शायद मैं गई थी नेशनल लेवल पे पहली बार। तो फिर जब मैं पहली बार खेलने के लिए मेरा पहली बार गोल्ड मेडल आ गया था। वहाँ से तो मुझे जुनून चढ़ा इस गेम का। आपने तो ढेर सारे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। हाँ, मैं मेरे काफी ज्यादा हैं, गोल्ड 17 के करीब गोल्ड मेडल है आपके पास, जी। बहुत बड़ी बात है आसिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जूडो कराटे से टेक्वांडो कुछ अलग है? जी, टाइकोंडो अलग है टोटली उनसे। उनमें ये होता है कि पंचेस वगैरह होते हैं ज्यादातर, और इसमें किक्स, इसमें ये होता है कि बंदा करता है गेम, अपने आप को बचाता भी है सही तरीके से। इसमें किक्स होती हैं, पंच होता है, और किक पंच के मतलब मुताबिक ही गेम है सही तरह से। इसके अपने रूल्स होते हैं सारे। ठीक हो गया। अच्छा शाकिर, मुझे जल्दी से बताएं कि आप गेम के साथ साथ कोई मैसेज भी दें नौजवान नस्ल को। जरा मैं चाहूंगा सारे सुने, आप लोगों की हिम्मत देख रहे हैं सारे, तो आप भी टेक्वांडो करते हैं, आपने बता भी दिया कि आप स्पोर्ट्स से, हमारे सुनने वालों को कोई मैसेज भी दें। मैसेज तो यही है कि नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। सिचुएशन, हर डिसास्टर के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसको वेल करना चाहिए और अपने हालात को खुद मैनेज करना चाहिए और अपने आप को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। वाकई आसिया, कोई मैसेज सुनने मैं वालों कहना चाहूंगी कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर कभी किसी इंसान को कोई मुश्किल है, इसका मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। उससे आगे रोशनी की बहुत ज्यादा किरणें होती हैं जो इंसान की जिंदगी में आती हैं, बहुत और वैसे ही जबरदस्त, मुसीबत इंसान को बिदार करने के लिए आती है, परेशान करने के क्या लिए। बात है जी, आपकी हिम्मत देख के तो मैं खुद भी बड़ा आप लोगों का मोहतरफ हूँ। और इनसे कोई मैसेज मैं चाहूंगा कि दें हमारे नौजवान नस्ल के लिए भी। मैं हमारे देखने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ सर कि मुश्किल वक्त इंसान के ऊपर आफात आती हैं, उसमें हमें हिम्मत रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो शूज़ किताबों की वजह से, अपनी कॉपी पेंसिल की वजह से स्कूल जाने से कासर हैं। और हमें ये सोचना चाहिए, वो जब दुआ करते होंगे अल्लाह से, उनके अल्लाह ताला से यही मुतालबात होते हैं कि या अल्लाह मुझे शूज़ चाहिए, किताबें चाहिए, मैंने स्कूल जाना है, कोई सबब पैदा कर दे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आए, खुबैब फाउंडेशन के साथ मिलके उनके लिए सबब बने और उन लोगों में से हो जाए जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कफालत यतीम करने वाला और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह साथ साथ हूँ। बहुत जबरदस्त। औरंगजेब, आसिया, शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इन तीन दोस्तों से मुलाकात करवाई। यहाँ पर अरीबा साजिद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वक़ार अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनके साथ साथ मौजूद है नैयरा मोहिउद्दीन। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। अरीबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप आज़ाद कश्मीर से हैं? जी। कौन सी जगह से? मुजफ्फराबाद। क्या सूरत हाल थी? आप मेरा ख्याल 2 साल की थी। जी। तो अरीबा क्या कुछ याद है या फिर सुना अपने बड़ों से? याद तो नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मामा बताती है कि उस वक्त सबकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी, कुछ भी बचा नहीं था। इवन हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं था वहाँ पे। जो लोग हमें सपोर्ट करते वही लोग जो ला रहे थे, बस आवाम वही खा रही थी वहाँ की। अच्छा वकार, आपकी क्या एज थी जब ज़ल्ज़ला? मैं जब ज़ल्ज़ला हुआ 8 अक्टूबर 2005 में, उस टाइम मेरी 1.5 साल थी और मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। ये मेरी ज़ल्ज़ले में मेरी वालदा भी इंतकाल कर गई थी। इस वजह से बाद में मुझे पता चला कि मेरी वालदा भी इंतकाल कर गई, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था, 1.5 साल में थी, उसमें कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो फिर मुझे पता चला कि मेरी वालदा भी ज़ल्ज़ले में इंतकाल कर गई। नैयरा, क्या सिचुएशन थी? मैं आप 3 कितनी साल बड़ी की थी? मैं 3 साल की थी और जब ज़ल्ज़ला हुआ तो हम अपने गांव में थे। हम पीछे बैठे हुए थे। पहले तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आपका गांव कौन सा? मुजफ्फराबाद में है वो। उधर फिर क्या सिचुएशन हुई? आपको कुछ थोड़ा बहुत याद थोड़ा है? थोड़ा याद है।
हम लोग अपने घर के पीछे एक जगह वहाँ बैठे हुए थे। पहले तो बहुत ज़्यादा सुकून का मौसम था, लेकिन अचानक से मेरे सामने जो पहाड़ थी वो हिलने पड़ गया और उनका सारा कुछ टूट गया, पत्थर वगैरह, और धुआं ही धुआं हो गया था। कुछ सेकंड तक तो इसी तरह होता रहा है। तो फिर बाद में रोशनी हुई है तो हम सबको अपने बाबा का ख्याल आया कि वो कहाँ होंगे। सब उनको देखने चले गए थे। तो वो उन्होंने काम लगाया हुआ था ना, तो उनके पास थे। तो बाद में तब पता चला कि मेरे बाबा की डेथ हो गई है। तो मेरी नानी जो है वो बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती थी, तो वो उनको देखने गई तो उनकी भी डेथ हो गई थी। अरीबा, आप ये बताएं मुझे कि फिर जिंदगी की शुरुआत होती है एक मुश्किल हालात से, जैसे आपके पहले दोस्तों ने भी बताया, कैसे ऑर्फनेज हाउस पे कैसे पहुंची आप, और किस तरह से फिर जिंदगी की शुरुआत हुई? जब पापा की डेथ हो गई थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम समझते थे जिंदगी यहाँ पे रुक गई है, लेकिन खुदा फाउंडेशन और सर नदीम, जिन्होंने हमारा बहुत सारा साथ दिया, हमें घर बना के दिए, हमारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, उनकी वजह से आज हम लोग जो भी हैं ये सारा क्रेडिट उनको जाता है हमारी तरफ से। तो आप ऑर्फनेज हाउस आई, फिर आपने अपनी लाइफ वहां से शुरू की? जी, मैंने अपनी पढ़ाई का आगाज खुदा फाउंडेशन से स्टार्ट किया। आप अभी सेकंड ईयर में? जी। ठीक। वकार, कैसे पहुंचे ऑर्फनेज हाउस तक? फिर उन्होंने किस तरह से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई? कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी जिंदगी में हिस्सा डाला? मैं उस टाइम तकरीबन 1.5 साल का था और उसलिए हबैब फाउंडेशन के एक इदारा था, उन्होंने हमें शाना में रखा लेके। वहाँ मेरी उम्र 1.5 साल थी। फिर मैं जब 3 साल का हुआ, मैं मुजफ्फराबाद हबैब फाउंडेशन का इदारा, उससे मुझे दाखिल किया और मैंने वहाँ पहली क्लास से वहाँ से शुरू किया हबैब फाउंडेशन से। मैं चेयरमैन नदीम अहमद खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वजह से मुझे मिला, क्योंकि मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, हमारे सब बार के हालात कुछ नहीं। कैसे पहुंचे आप लोग ऑर्फनेज हाउस तक फिर? अब पता है जिंदगी के दो ऐसे हैं ना कि मुझे कभी नहीं भूलते। एक, जब मैं छोटी होती थी मेरे बाबा आते थे, हम उनके साथ खेलते थे। 2 बार मैंने अपने बाबा को जिंदगी में देखा है। एक बार उनका जनाजा देखा था और एक बार उसके बाद मेरे मामू ने दाखिला करवाया हमारा, और फिर उधर से मैंने 1 क्लास पढ़ी और नदीम साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। फिर हम 12th 11th के बाद 11th मैंने हॉस्टल में की, और यहाँ के वार्डनर मुफ्ती साहब और उनकी वाइफ बहुत अच्छे थे, उन्हें हमें बहुत सपोर्ट किया और इस काबिल बनाया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सबका जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अभी यहाँ इस मुकाम पे हूँ। आप लोग अभी इस्लामाबाद हैं? सारे बच्चे यहीं रहते हैं? जी। अच्छा अरीबा, आपने पढ़ाई अपनी आगे क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान्स क्या है? जरा पढ़ाई की भी बात कर ले। पढ़ने में कैसे हैं आप लोग, जरा ये तो पता चले। पढ़ाई अच्छी है और मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। वेरी गुड। आर्मी में क्यों जाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आवाम की खिदमत करते हैं वो लोग अपनी जान पे खेल के, मैं भी चाहती हूँ मैं उस तरह उनकी तरह बनूँ। पढ़ाई में आप कैसी हैं? पढ़ाई में बहुत एक्स्ट्रा लाइक भी नहीं हूँ, बस नॉर्मल। ठीक है, तो आगे आपने आर्मी में जाने का प्लान रखा है कि इंशाल्लाह आप अपना इंटरमीडिएट करेंगे, फिर आप आर्मी के टेस्ट देंगे, ऐसा? जी। वकार, क्या चाहते हैं? अब एजुकेशन कैसे आगे बढ़ानी है? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अल्लाह के फजल करम से मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और मैं A+ ग्रेड में रहा हूँ। और मैं आज हबैब कॉलेज से मैंने फाउंडेशन से 10th क्लास की है और मैंने इसमें IT कंप्लीट रखा और मैं आगे जाके हार्डवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ IT में। आपको पता है वकार, इस वक्त दुनिया भर में IT फील्ड बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। आप दुनिया के हर फील्ड ले लें, कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं है। विंडोज, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, इन चीजों के बगैर कोई काम नहीं है। यही सोचकर इस फील्ड को चूज किया? नहीं, एक तो इसके लिए हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि आगे सब टेक्नोलॉजी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, हर काम टेक्नोलॉजी आ रही है। ये मैं चाहता हूँ कि नाम आगे जाऊँ IT में हार्डवेयर इंजीनियरिंग करके इससे आगे फायदा हो तक जो। चलिए, वेरी गुड। है ना, क्या फ्यूचर प्लान्स है? आगे क्या करना है? पढ़ाई आप मेरा ख्याल है मेडिकल पढ़ी है? जी, आगे मुझे 2 एम से मेरे, एक या तो मैं डॉक्टर बनूंगी, अगर उसमें ना हुआ तो मैं आर्मी कमांडो में जाना चाहती हूँ। आर्मी कमांडो बनना चाहती हैं? अच्छा, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के लिए सोचा है कि फिर कौन सी फील्ड चूज हार्ट कर? स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट, जबरदस्त जबरदस्त। तो कोई वजह है इसकी खास, या लोगों की खिदमत करना? लोगों की खिदमत करना। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, आप तीनों गेम भी कोई ना कोई यकीनी तौर पर खेलते हैं, जैसे आपके पहले सारे दोस्त टेक्वांडो, क्रिकेट और बाकी चीजों से खेलों के साथ मुंसलिक है। अरीबा, कौन सी गेम खेलती हैं आप? मैं ताइक्वांडो करती हूँ और टेबल टेनिस में मैं चैंपियन हूँ।
टेबल टेनिस भी खेलती हैं टेक्वांडो के साथ, जबरदस्त। वकार? मैं taekwondo करता हूँ और taekwondo में ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने नेशनल 12th कोरियन एम्बेसडर इस्लामाबाद में खेली चैंपियनशिप, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और मैंने तकरीबन 8 चैंपियनशिप खेली जिनमें मैंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लिए। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं ना? स्कूल लेवल पे मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी, बैडमिंटन, क्रिकेट और बास्केटबॉल में। और अभी मैं ताइक्वांडो करती हूँ और येलो बेल्ट अभी 1 साल हुआ है मैंने ज्वाइन। बैडमिंटन भी खेलती हैं कि टेबल टेनिस? दोनों। अच्छा, चलिए इस पे भी बात करते हैं। बास्केटबॉल भी आपने खेली है? वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी अरीबा, वक्कार और नैयरा से, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में तीनों हजरात। जरा आगे की बात और आगे के प्लान्स भी इनसे जानते हैं। इनकी अर्ली लाइफ पर बात हो गई, तीनों स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, इस पर भी कुछ बात कर ली है। अरीबा, अभी आप मुझे बता भी रही थी आप तुर्की होकर आई हैं, तुर्की विजिट कर आई हैं, क्या करने गए थे तुर्की, कैसा टूर रहा? हम लोग तुर्की खुदा फाउंडेशन की वजह से गए थे। खुदा फाउंडेशन हमें मौका दिया कि हम वहाँ जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें। हम लोगों ने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस की थी। परफॉर्मेंस किस चीज पे थी? हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था वहाँ जबरदस्त पे। जबरदस्त। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 लड़कियाँ थी और हमारे साथ 6 लड़के थे जो हम लोग गए थे खुदा फाउंडेशन के जरिए। तो वहां पर कितने लोग थे आगे जो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे थे? वहाँ पे 1000+ लोग थे जो वहाँ पे बैठ के हमें देख रहे थे। जबरदस्त। तो आपने कर ली, इतनी आप शाये हैं, फिर भी आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। वेरी गुड। वकार, बाहर का कुछ टूर किया आपने अभी तक? अभी तक नहीं किया है, आगे इंशाल्लाह होगा। अच्छा वकार, ये बताएं कि स्पोर्ट्स के साथ साथ जो अब तक की आपकी अचीवमेंट्स हैं पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, इन दोनों को एक साथ कंटिन्यू करेंगे आगे? चाह रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ लेके जाएं आगे, टेक्वांडो भी और आगे इन चीजों को भी लेके चलें साथ पढ़ाई के? जी मैं चाहता हूँ मैं taekwondo भी साथ साथ करता रहूँ और इसमें अभी तो ब्लैक बेल्ट हूँ, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न। मैं चाहता हूँ ये ब्लैक बेल्ट आगे जितने भी आ रहे हैं मैं करूँ, साथ पढ़ाई को भी जारी रखना चाहता हूँ। कितना टाइम देते हैं स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स को हम देते हैं 3 घंटे, 3 से 2.5 घंटे। कैसे, जिम है कोई, क्या है आप? क्लब है अपना, taekwondo का क्लब हमारा, उसमें लगा सिर्फ taekwondo होती है। जबरदस्त। तो रनिंग शनिंग भी होती है? मैट नीचे सब मौजूद है, सब चीज मौजूद है। और होगो, हेड केयर, शिन आर्म, हर ट्रेनिंग की हर चीज मौजूद है। जबरदस्त। अरीबा, आप भी टेक्वांडो करती हैं, तो कैसे आप लड़कियां, तो बड़ी बात है कि माशाल्लाह इस गेम में, और ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, आपने क्यों चॉइस किया टेक्वांडो को? ताइक्वांडो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए चूज़ किया उसको। और हमें सर ने बहुत मोटिवेट किया कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लें, करें ताइक्वांडो, इसलिए की। और हमारी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे उन्होंने बताया, हेड गियर, होगो, आर्म गार्ड, शिन गार्ड, सब कुछ। हमारे सर जो हमें नेशनल लेकर जाते हैं, इंटरनेशनल पे पार्टिसिपेट करवाते हैं सब। नहीं ना, आप भी लेकिन आप मेरा ख्याल है 2-3 गेम्स खेलती हैं ना, एक बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस तो अरीबा भी खेलती हैं, इनसे पूछते हैं अभी। और टेक्वांडो भी है। इतनी सारी गेम्स माशाल्लाह। कुछ बच्चे होते हैं जो हर स्पोर्ट्स को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है आप उनमें से एक हैं। टेक्वांडो कैसे है, और फिर कहाँ टेबल टेनिस, कहाँ पर बैडमिंटन? सर स्कूल लेवल में मैं बैडमिंटन खेलती थी, जब से हॉस्टल में आई हूँ यहाँ लड़कियाँ करती थी और थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें करने में मज़ा आता है, इस वजह से मैंने किया है। और फिर टेक्वांडो भी, ताइक्वांडो। वो सेल्फ डिफेंस के लिए तो जी। सब बच्चे, मेरा ख्याल है आप लोगों के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे टेक्वांडो में बड़े इंटरेस्टेड हैं और चैंपियंस भी हैं आप लोग। टेबल टेनिस कैसे? टेबल टेनिस भी बड़ी मुश्किल गेम है, वो तो इतनी सी बॉल होती है, छोटा सा टेबल होता है, कैसा? बड़ी मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती है। सुबह कॉलेज वाला में सिखाते होते थे, पहले सिखाते थे और फिर स्पोर्ट्स होता था ना वीक, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि रीबा, आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत होती है आपकी? जी बिल्कुल, हाँ, हर संडे को हमें 20 से 25 मिनट दिए जाते हैं जिसपे हम लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं। अगर कोई हमें इशू हो तो हम हुबैब फाउंडेशन को बता देते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं हमारे घर की प्रॉब्लम्स भी जो सारी होती हैं। जबरदस्त। अच्छा किन से सबसे ज्यादा बात करती हैं आप? मैं अपनी मम्मा से सबसे ज़्यादा बात करती हूँ। और फिर और भी आपके बहन भाई हैं? जी मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। मेरी दोनों बहनें और भाई भी हुबैब फाउंडेशन से पढ़ के गए हैं और आज वो लोग सब अच्छे मुकाम पर हैं। मेरी दोनों बहनें मैरिड हैं और भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। वकार, आपकी वालिदा की आपने बताया था कि डेथ हुई थी, फादर आपके हैं जी। तो बात होती है उनसे, कब होती है, क्या बातचीत होती है? हर संडे को हमें, हमारे हाउस मास्टर होते हैं हॉस्टल में, वो हमें हर संडे को, हर
तकरीबन जितने लड़के होते हैं सबको 5-5, 10-10 मिनट देते हैं जो अपने घर से बात कर सकते हैं, और हर महीने के आखिर पे वीकेंड होता है, उस पर हमें 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, हम घर भी जा सकते हैं, उसमें घर जाकर वापस आते सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? हैं। मैं अपने अबू से करता हूँ बात। वालिद साहब से। आपके बहन भाई नहीं हैं? जी बहन भाई, मेरे 2 भाई हबीब से ही पढ़ के गए हैं। और वो बड़े भाई हैं आपसे? जी मेरे से बड़े, मैं सबसे छोटा। ठीक है। वो अब क्या कर रहे हैं? वो अभी आगे एक तो आर्मी में, और दूसरे जो हैं वो क्या नाम है, हार्डवेयर में उन्होंने इंजीनियरिंग की, वो अभी होते हैं उस पर। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी भी अपने रिलेटिव से बात होती है, रिश्तेदारों से? जी, जैसा कि इसने बताया कि संडे को हमें 20 से 25 मिनट दिए जाते हैं, तो उसमें मैं अपनी अम्मी से और भाइयों से ज़्यादातर बात करती हूँ। तो क्या बातें क्या कहते हैं आप लोग आजकल? वैसे जब दूर होता है तो फिर बड़ी सारी चीजें याद आती हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। अब जाहिर है आपकी पढ़ाई यहाँ है, आप लोग अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं, और फिर अलग मुख्तलिफ हालात होते हैं। पहले जहाँ आप गाँव में रहते होंगे वहां से शहर के हालात भी मुख्तलिफ हैं, तो क्या इन सब चीजों पर बात होती है? नहीं, घर की हालात भी होती है और पूछते हैं क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत ठीक है, और फिर छोटे बच्चों से बात करते हैं, भाइयों के बेटों से। अच्छा अरीबा, ये बताएं कि इस वक्त अब आपके फ्यूचर प्लान्स भी हमने जान लिए, सारा कुछ बातचीत तो हो ही रही है मुख्तलिफ चीज़ों पे। आप अपने जैसे हालात आप लोगों के आपने ज़लज़ले में देखे, आप समझते हैं कि आप सारे बच्चे अब आगे बढ़ें और अपने जैसे और जो लोग जिन पे कोई ना कोई किसी न किसी तौर पर आफत हो, अल्लाह ताला सबको बचाए आफत से, लेकिन कोई आफत ज़दा हो तो उनके लिए कुछ करने का आज़म है, कुछ चाहती हैं कुछ करें उनके लिए? मैं चाहती हूँ जैसे खुदा फाउंडेशन ने एक अदारा कायम किया जिसमें सब बच्चों को वो तालीम देते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ इसमें, और उन्हीं के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाऊँ। क्या मदद करेंगे? बच्चों को चाहती हैं कि बच्चों को तालीम मिले, वो अच्छा खा पी सकें, रह सकें, आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स करें? सबसे पहले बच्चों को अपनी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और साथ स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए। और मैं जब ताइक्वांडो मास्टर बन जाऊंगी तो मैं उन सब को सिखाऊंगी, और साथ उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उन सब का भी हल निकालूंगी। जबरदस्त। वकार, क्या सोचा है कि नौजवान नस्ल के लिए अपने जो अपने आप के और दोस्त हैं उनके लिए कुछ करने का और कोई आज़म है? कि जिस तरह चेयरमैन हबीब फाउंडेशन नदीम अहमद खान साहब ने हम यतीम बच्चों के अदारे कायम किए, उसमें हमारी कफालत की, इस तरह मैं भी चाहता हूँ मैं बड़ा होकर यतीम बच्चों की कफालत करूँ और उनको तालीम, टाइक्वांडो, जितनी चीज़ें हमें हबीब फाउंडेशन से मिली, मैं चाहता हूँ उनको सिखाऊँ आगे। जबरदस्त। नहीं ना कुछ चाहती हैं कि आप भी कुछ करें? जी, जो एक तो यतीम बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा साथ देना चाहती हूँ, और जो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो स्पेशल चाइल्ड, उनमें मुझे इंटरेस्ट है, उनकी मदद छोटा सा एक मैसेज भी आप लोगों का नौजवान नस्ल के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, अरीबा कुछ कहना चाहती हैं? जितनी भी मुश्किलात आती हैं उन सब का मुकाबला हमें करना ही होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हिम्मत और हौसले से करें, और जो भी मुश्किलात हैं जब हम लोग खुद अपनी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे, इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है सबके लिए। वकार, मैं जबरदस्त। चाहता हूँ जिस तरह हमारे ये यतीम अदारे कायम हो हबीब फाउंडेशन की तरफ से, इस तरह मैं चाहता हूँ और अदारे कायम हो यतीम बच्चों के, जिनमें कोई यतीम बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई सब उनमें होने चाहिए, लेकिन सब चीज़ के लिए होने चाहिए। मतलब जिस तरह हबीब फाउंडेशन ने अदारे कायम किए यतीम, इस तरह और अदारे भी होने चाहिए जिनमें यतीम लोगों बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए आगे और बढ़ना चाहिए। मजीद काम करना चाहिए। नहीं रहा असल में जो कामयाबी है वो आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, और जो हम पर मुश्किल हालात आते हैं उनका डट कर सामना करें, और अल्लाह पर उम्मीद कभी भी ना छोड़ें। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे ज़िंदगी में। माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया। नय्यरा मोहिउद्दीन, वक्कार अहमद हमारे साथ थे, अरीबा साजिद हमारे साथ मौजूद रही, और इससे पहले भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया। आज मैं बड़ा खुश हुआ, और जो तल्ख यादें थी उसको भी भुलाया, आगे भी बढ़े, आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। टेक्वांडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट जैसी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। तो देखने वालों के लिए भी यही है कि आप आफात से घबराएं नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से जो आफत आप पर नाजिल होती है, अल्लाह ताला ने उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई ऑल्टरनेट रखा होता है। जैसा कि पहले औरंगजेब ने भी कहा कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। कोशिश की कि आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएं ताकि सुनने वालों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, और सच टीवी की हमेशा से काविश कि अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक बाहिम्मत सा मैसेज पहुंचे। आप भी हिम्मत पकड़ें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।